हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे टोक्यो ओलंपिक गेम से रिलेटेड। बहुत अच्छी वीडियो रहेगी, एंड तक जरूर देखनागा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So friends, we have an app by the name Carriers Clouds which you can go and download using the Play Store. Once you have downloaded it, you have to log in with your Gmail ID. And once you are logged in, you will be able to toggle between the individual courses. You can see various courses offered by us. In those courses, we provide you PDFs on daily basis, weekly basis as well as monthly basis. On daily basis, we will be providing you with 20 questions quizzes daily along with the 20 questions of that particular day current affairs. Similarly, the compiled quiz of 50 questions will be provided to you on weekly basis along with the compiled important current affairs of that particular week, and same goes for your monthly PDF. These courses are very important. They are highly important as they are prepared by the various teachers that help you to prepare as well as to give you the command over that particular subject. These course you can share, we provide for banking awareness. We provide you with multiple questions, multiple informations regarding that particular exam. Not just that, we provide you with topic wise current affairs also. Topics such as apps and web applications, important days, books and authors, national affairs, international affairs, all right, science and tech, defense, satellites, and anything you need to know about the general awareness and current affairs, we provide you with that matter. So these will be very helpful to you. Go and check out our courses that are provided on the app. If you want to avail the 10% offered by us, you can use the code VIKAS10 and you will be getting a straight 10% discount on the purchase that you make. So friends, go hurry up, and it is an opportunity for all the aspirants. So friends, it's an opportunity for all the aspirants to go and avail this offer. So friends, we have started with a new initiative, that is your infographics. Infographics is your interactive PDFs. As you can see here, you can find these infographics in your application of Carriers Cloud. Once you have logged in and you have purchased the course, you will be able to see the section here, special current affairs. On clicking the special current affairs, you will be directed and you will be seeing some more information there. Then you have to move towards the learn from picture. This is the portion where you will be able to get your interactive infographics. These are the interactive PDFs. All right, so this is in our course of Carriers Cloud application. Do check that out, they will be very helpful to you. This is an interesting way of learning, a new way of learning. Stay tuned with us. All right, तो चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। टोक्यो ओलंपिक गेम्स के बारे में हम बात करेंगे 2020, जो कि किस ईयर में हुए, 2021 में जाके हुए थे क्योंकि कोविड आ गया था। ठीक है, याद रखना है जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स थे, ये आपका 32वां एडिशन था ओलंपिक गेम्स का, और ये आपका कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था। टोक्यो, आपको याद रखना है कि ये पहली बार नहीं है टोक्यो ने ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया है, बल्कि ये सेकेंड टाइम है। इन्होंने इससे पहले 1964 में भी ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया था। ऑलराइट, तो याद रखना, टोक्यो ओलंपिक गेम्स का 32वां एडिशन था जो कि टोक्यो में हुआ, सेकेंड टाइम हुआ था, पहली बार 1964 में देखा गया था हमने टोक्यो को होस्ट करते हुए। तो कौन सी सिटी ने होस्ट किया? टोक्यो सिटी ने होस्ट किया। अब पूछेंगे आपसे कि ओलंपिक मोटो क्या होता है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ये आपका मोटो रहेगा ओलंपिक गेम्स का इस बार का, काफी इंपॉर्टेंट, पहले तो याद रखो। ठीक है, आई रिपीट, क्या है आपका टोक्यो ओलंपिक का मोटो? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ठीक है, अब 2020 समर ओलंपिक मैस्कॉट क्या था? मिराई टोवा। मिराई टोवा आपका क्या रहेगा? 2020 समर ओलंपिक का मैस्कॉट। ऑलराइट, अब आपसे पूछूं कि टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ, तो टोक्यो ओलंपिक्स में जो 2020 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी टोक्यो ओलंपिक गेम्स की, उनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? उनके प्रेसिडेंट भी तो आपको पता होने चाहिए, कौन रहेंगे? साइको हाशिमोटो। सीको हाशिमोटो आपके कौन है? प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 के। ठीक, चलो ये चीज आपको क्लियर हुई पहली। अब देखते हैं नेक्स्ट, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको याद रखना है 339 इवेंट्स हैं टोक्यो ओलंपिक गेम्स में, जिसमें 33 डिफरेंट स्पोर्ट्स से।
जैसे इवेंट्स अलग इतने क्योंकि कैटेगरीज अलग हो जाती हैं। जैसे कोई अगर रेसलिंग की बात करें, बॉक्सिंग की बात करें, 67 कैटेगरी, 50, 60, 65 केजी कैटेगरीज अलग हो जाती है, तो वो इवेंट्स अलग हो जाते हैं। तो 339 इवेंट्स हैं 33 स्पोर्ट्स के लिए, और इसमें 206 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है नॉर्थ कोरिया को बैन कर दिया था ओलंपिक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से, एंड वाडा ने, जो आपकी डोपिंग एजेंसी है, इन्होंने रशिया को भी बैन कर दिया है 4 साल के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने डोपिंग किया, इनको जो एथलीट्स थे उनको डोपिंग की शिकायत मिली वहां से। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, बट स्टिल आप ये देखते हैं इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी, हर इवेंट की ओपनिंग सेरेमनी होती है, उसका कंसेप्ट क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशंस। कंसेप्ट था यूनाइटेड बाय इमोशंस। और जो स्टार्ट होते हैं गेम्स, तो एक आपको पता हो कि मशाल कहते हैं, ओलंपिक की मशाल। तो टॉर्च बियरर कौन रही? नाओमी ओसाका आपकी टॉर्च बियर रही टोक्यो ओलंपिक गेम्स की। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स की जो टॉर्च बियरर थी वो कौन थी ओपनिंग सेरेमनी के दौरान? नाओमी ओसाका, जो कि टेनिस प्लेयर है। किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये आपकी जापान से बिलोंग करती हैं। अगर हम इस टॉर्च की बात करें, ओलंपिक टॉर्च की बात करें, ये पहली बार 1928 में इंट्रोड्यूस की गई थी। एम्स्टरडेम गेम्स के दौरान इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑलराइट, दो चीज़ ये याद रखना टॉर्च, ओलंपिक टॉर्च से रिलेटेड। 1928 में फर्स्ट टाइम एम्स्टरडेम गेम्स के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, देन इसके साथ ही साथ जो पहले एथलीट थे वो ग्रीस के थे जिन्होंने टॉर्च बियरर थे, वो थे कॉन्स्टेंटिन कॉन्डलेस। ये पहले एथलीट थे ग्रीस के टॉर्च बियरर, या फिर पहले एथलीट जनरली बोल सकते हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी का कंसेप्ट था यूनाइटेड बाय इमोशंस, और टॉर्च बियर रहेंगी नाओमी ओसाका। सिमिलरली ये तो थी ओपनिंग सेरेमनी, तो क्लोजिंग सेरेमनी का कंसेप्ट था वर्ल्ड्स वी शेयर। ऑलराइट, अब टॉर्च बियर तो हो गई नाओमी ओसाका, लेकिन जब गेम खत्म हो जाते हैं, एंडिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी होती है, तो जो ओलंपिक फ्लैग है ना, उसको नेक्स्ट कंट्री को दिया जाता है जो कि ओलंपिक गेम्स को होस्ट करेगी। अब अगले ओलंपिक 2024 में होंगे, और होस्ट कौन करेगा? पेरिस होस्ट करेगा। तो पेरिस को आपका नेशनल फ्लैग, ओलंपिक फ्लैग दे दिया गया था क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान। ये हो गया आपका क्लोजिंग सेरेमनी का, और पेरिस नेक्स्ट होस्ट करेगा। इतनी चीजें क्लियर। 339 इवेंट्स, 33 स्पोर्ट्स होंगे, 206 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, अब आपको देखना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। आप देख सकते हैं ओलंपिक कमेटी का ये मोटो होता है, या फिर आप इसको फ्लैग कह सकते हैं। इस फ्लैग में कितनी रिंग्स हैं? 5 रिंग्स हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को फॉर्म किसने किया था, फाउंड किसने किया था? इट वॉज फाउंडेड जॉइंटली बाय पियर दे कुबर्टिन, जो कि फ्रांस के हैं, एंड डेमेट्रॉइस विकेलास, ये ग्रीस के हैं। इन दोनों ने मिलकर 1894 को 23 जून को फ्रांस में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया था। इन दोनों ने मिलकर इसको फाउंड किया था। ऑलराइट, और याद रखना पियर दे कुबर्टिन को ही फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स किनको कहा जाता है? पियर दे क्यूबर्टिन को। ये चीज, 3-4 चीज हो गई इससे क्लियर। नेक्स्ट, अब ओलंपिक फ्लैग की बात करते हैं। ओलंपिक फ्लैग, ठीक है, आपने देखा, हमने ये इनका फ्लैग है ओलंपिक। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, अब आप समझ जाएंगे। 6 कलर्स की बात की जाती है कि ओलंपिक फ्लैग में 6 कलर्स होते हैं। ठीक है, चलो 6 फ्लैग कैसे? ये तो 5 रिंग्स हैं, तो जो बैकग्राउंड होता है ना वो वाइट होता है। तो बैकग्राउंड वाइट कलर, और फिर आपकी जो 5 रिंग्स हैं उनके कलर आ जाते हैं। जो 5 रिंग्स हैं ये आपकी क्या सिग्निफाई करती हैं? ये सिग्निफाई, और आप देखेंगे कि ये गोल गोल ऐसे राउंड में एक दूसरे के अंदर से हैं, इंटरलॉक्ड हैं। तो ये शो करती हैं यूनाइटेड ऑफ अमंग ऑल द 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक यूनिटी को सिग्निफाई करती हैं, एक स्ट्रेंथ को सिग्निफाई करते हैं कि जो 5 कॉन्टिनेंट है अर्थ के वो एक साथ है। फिर आपको कलर्स याद रखने हैं। ब्लू कलर है यूरोप का, ब्लैक अफ्रीका, रेड फॉर अमेरिका, येलो फॉर एशिया, और ग्रीन फॉर ओशियाना। ठीक है, ये कलर्स भी आपको याद रखना है कि कौन सा कलर किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बस व्हाइट आपका बैकग्राउंड में है। व्हाइट आप कहते हैं पीस, लेकिन ये पीस को सिग्निफाई नहीं करता, बट आपको ये 5 याद रखने हैं, और व्हाइट आपका हो जाता है बैकग्राउंड, क्योंकि व्हाइट जो कलर होता है ना वो बेसिकली सिग्निफाई करता है पीस को, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है,
ओलंपिक फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम 1920 में होस्ट किया गया था, ठीक है। और ओलंपिक गेम्स में जो कि बेल्जियम में हुए थे, वहाँ पे पहली बार इस फ्लैग को होस्ट किया गया था। तो 6 कलर्स हैं, 5 रिंग्स हैं, 5 रिंग के कलर्स आपको याद रखने हैं किस कंट्री को सिग्निफाई करते हैं। और ये पांचों रिंग्स टुगेदर क्या सिग्निफाई करते हैं? यूनिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट, यूनिटी ऑफ द ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, जो कि 5 कॉन्टिनेंट होते हैं। फिर हम बात करेंगे आपसे ओलंपिक मेडल्स की। ओलंपिक मेडल से पहले चलो एक चीज और देख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अब आने वाले जो गेम्स होंगे, एक होता है विंटर ओलंपिक गेम्स, एक होता है समर ओलंपिक्स। 2022 का विंटर ओलंपिक होगा चाइना में, बीजिंग चाइना में, ठीक है। फिर इसके बाद 2026 में होगा इटली, ठीक। समर ओलंपिक्स की बात करें तो 2024 में अभी किसको उन्होंने फ्लैग दिया था? पेरिस, फ्रांस को। तो फ्रांस में आपका समर ओलंपिक्स होगा। और 2028 में आपके लॉस एंजलिस यूएसए में आपके समर ओलंपिक्स होंगे। तो कमिंग बैक 2022 चाइना में, अब इस साल 2022 शुरू हो गया, तो इस साल विंटर ओलंपिक्स होंगे बीजिंग चाइना में। देखो होते हैं नहीं। मूविंग ऑन, अब हम ओलंपिक मेडल्स की बात करेंगे। 3 मेडल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। पहला पोजीशन गोल्ड, दूसरी पोजीशन को सिल्वर, तीसरी पोजीशन को ब्रॉन्ज। अगर अब हम बात करें इन मेडल्स की, हर मेडल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? हर मेडल में जो गोल्ड है, सिल्वर, ये प्लेटेड बोले जाते हैं, किसमें कितना कंटेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं डायमीटर बात करूं हर मेडल का, तो वो 85 मिलीमीटर का होगा। गोल्ड मेडल की बात करें तो इसमें 92.5% आपका सिल्वर होता है, जो बाकी बचा वो आपका गोल्ड होता है, जो कि कह आप कुछ 6 ग्राम आपका गोल्ड होता है। तो टोटल वेट जो आपका गोल्ड मेडल का होता है वो होता है 556 ग्राम्स का। सिल्वर मेडल, इसमें 100% सिल्वर होता है और इसका वेट होता है 550 ग्राम्स, ठीक है। और फिर एंड में आता है ब्रॉन्ज मेडल। ये ब्रॉन्ज मेडल आपका किससे बना है? रेड ब्रास से बना है। ब्रास किसका कॉम्बिनेशन से होता है? कॉपर प्लस जिंक। कॉपर आपका 95% और जिंक आपका 5% होता है, ठीक है। और इसका टोटल वेट आ जाता है 450 ग्राम्स। ये आपके हो गए ओलंपिक मेडल से बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था रशिया की प्लेयर्स को डोपिंग के वजह से बैन कर दिया गया 4 साल के लिए ओलंपिक गेम्स से, टिल दिसंबर 2022। मतलब अब जो विंटर गेम्स होंगे चाइना में, उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और वाडा होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिन्होंने ये बैन लगाया रशियन ओलंपिक कमेटी पे या रशियन टीम पर, ताकि वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट ना करके डोपिंग की वजह से। नेक्स्ट, अब आपको याद रखना है जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए हैं 2020 के, इनमें 4 नए स्पोर्ट्स को लॉन्च किया गया: कराटे, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इंपॉर्टेंट ये चारों नाम याद रखना। इसके बाद बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, इसको री इंट्रोड्यूस किया, बीच में हटा दिया था, अब वापस से री इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो अब टोटल मिला के देखें तो इन स्पोर्ट्स के भी, चारों स्पोर्ट के कुछ इवेंट होंगे, तो अ टोटल ऑफ 34 न्यू इवेंट्स वर एडेड इन द 2020 ओलंपिक गेम्स। अ टोटल ऑफ 34 नए इवेंट्स लाए गए थे इस टोक्यो ओलंपिक गेम्स में, ठीक। ये तो हो गई आपकी इससे बात। अब हम बात करेंगे इंडिया की, ठीक है। मेन हमें इंडिया का पता होना चाहिए, क्वेश्चन हमें इंडिया से पूछे जाएंगे, किसने कितने मेडल जीते, क्यों जीते, कैसे जीते, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इंडिया की तरफ से अगर हम देखें तो मेडल सबसे पहले ये याद रखना, नीरज चोपड़ा ने, इनसे बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट एक क्विक रिवीजन। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स स्पोर्ट के जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड जीता। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 49 केजी कैटेगरी में सिल्वर। रवि कुमार दहिया रेसलिंग 57 केजी कैटेगरी में सिल्वर। पीवी सिंधु बैडमिंटन वीमेन सिंगल कैटेगरी में ब्रॉन्ज। लोवलिना बोर्गेन बॉक्सिंग 64 टू 69 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज। मेंस हॉकी टीम क्या जीता? ब्रॉन्ज। बजरंग पूनिया रेसलिंग में फ्री स्टाइल 65 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज। तो टोटल कितने मेडल जीते, किन के बता दो मुझे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेडल जीते टोटल इंडिया ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में। 1 गोल्ड था, कितने सिल्वर थे? 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे ये मेडल, ठीक है। ये तो थी मेडल टैली। इंडिया कौन सी पोजीशन पे रहा, इंडिया की क्या पोजीशन रही मेडल टैली में इस टोक्यो ओलंपिक गेम्स में, और टॉप पे कौन रहा ये भी बताओ।
इंडिया की क्या रैंक रही? 48th। टॉप किसने किया, ये आपका होमवर्क है। बताइए मुझे मेडल टैली में टॉप करने वाली कंट्री कौन सी थी? ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स की जिन्होंने मेडल्स जीते। सबसे पहले हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंडिया से ही बिलोंग करेंगे ऑब्वियसली। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? आपकी कौन सी स्टेट रहेगी? हरियाणा। हरियाणा के प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। जेवलिन थ्रो आपका इवेंट रहेगा और स्पोर्ट्स कौन सा है? एथलेटिक्स। ठीक है, इनका डिस्टेंस कितना था? 87.58 मीटर इन्होंने अपने जेवलिन थ्रो की और गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए। ऑलराइट, चलो फिर याद रखना ये सेकंड इंडियन है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। पहले प्लेयर कौन थे? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा में शूटिंग में 2008 के बीजिंग ओलंपिक गेम्स में 10 मीटर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था और सेकंड इंडियन बन गए जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, वो है नीरज चोपड़ा। अब नीरज चोपड़ा के कोच का नाम आपको पता होना चाहिए। कौन है? यूए हॉन। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन यूए हॉन का अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम लॉन्गेस्ट जेवलिन थ्रो का, जो कि 104.80 मीटर का रहेगा। ऑलराइट, एंड नीरज चोपड़ा को ही 2018 में अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली पुणे की एक यूनिवर्सिटी है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जिसका रीनेम कर दिया गया आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट से नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ठीक है, आई रिपीट, पुणे की एक यूनिवर्सिटी थी आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जिसको चेंज करके अब नीरज चोपड़ा स्टेडियम नाम दे दिया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन थ्रो डे मनाने की बात की गई इन द मेमोरी कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए। नेक्स्ट, यहां आपको पता होना चाहिए नीरज चोपड़ा की रैंक क्या है वर्ल्ड में। वो 4th पोजीशन पे आते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे जॉनेस वेटर हैं और सेकंड पे जाकूब वेल्ट जो कि चेक रिपब्लिक के हैं। तो 4th पे आते हैं आपके नीरज चोपड़ा। ऑलराइट, याद हो गई ये चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट नीरज चोपड़ा से रिलेटेड आपको याद रखनी है ये सब कुछ। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से बिलोंग करती हैं मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता इंडिया के लिए। किस स्पोर्ट में जीता? आप यहां देख सकते हैं वेट लिफ्टिंग कैटेगरी, वो भी 49 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। एंड इन्होंने 202 किलो उठाया था, टोटल केजीज उठाया और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता इंडिया के लिए। इसके साथ साथ आपको याद रखना है 49 केजी कैटेगरी, 202 केजी। एंड मीराबाई चानू के जो ओलंपिक कोच कौन रहे? विजय शर्मा। ये सेकंड इंडियन वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने मेडल जीता एंड फर्स्ट वेट लिफ्टर जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, आई रिपीट, सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली वेट लिफ्टर है एंड सेकंड वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने मेडल जीता था। इसके साथ याद रखना कर्णम मल्लेश्वरी, अगर आपको याद हो, इन्होंने कर्णम मल्लेश्वरी जी ने 2000 के समर ओलंपिक गेम्स जो कि सिडनी में हुए थे, वहाँ पे उन्होंने पहला मेडल जीता था इंडिया की वेट लिफ्टिंग के लिए। 69 केजी कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और सिल्वर मेडल अब जीता है मणिपुर की मीराबाई चानू ने 49 केजी कैटेगरी में 202 किलो उठा के। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ये बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं पीवी सिंधु। इन्होंने कौन सा मेडल जीता? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया के लिए। ठीक है, और इन्होंने किन को हरा के जीता? चाइना की ही बिजिंगजाओ को हरा के ये मेडल जीता। फिर याद रखना गोल्ड मेडल किन्होंने जीता? शेन यूफी जो कि चाइना की ही हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक गेम में। कमिंग बैक, अगर मैं आपसे पूछूं पीवी सिंधु के कोच का क्या नाम है, तो पार्क टी सेंग। पार्क TAE सेंग, ये साउथ कोरिया के हैं, इनके कोच पीवी सिंधु के। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है पीवी सिंधु ने इससे पहले, ये इनका सेकंड मेडल है, सेकंड ओलंपिक मेडल है। इससे पहले 2016 में जो रियो ओलंपिक गेम्स हुए थे वहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और अब 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुआ था वहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है,
इसके साथ आपको याद रखना है पीवी सिंधु की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 7th रैंक पे आती है। फर्स्ट पे टाइजू यिंग है ताइवान की, सेकंड है शेन यूफी चाइना की जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक गेम्स में। अगर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें 1934 को ये एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है और प्रेसिडेंट रहेंगे पॉल एरिक होयर जो 21 से 25 तक हैं 2000। ऑलराइट, एंड अगर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो प्रेसिडेंट है हिमंता बिस्वा शर्मा जी। 1940 में फाउंड किया गया था ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोवलिना बोर्गोहेन की। ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? असम से बिलोंग करती हैं। एंड मैंने आपको बताया है असम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इनको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं इन क्वेश्चंस को। तो लोवलिना बोर्गोहेन ये सेकंड इंडियन वीमेन बॉक्सर बनी एंड थर्ड बॉक्सर ओवरऑल जिन्होंने एक ओलंपिक मेडल जीता। ठीक है, सेकंड इंडियन वीमेन क्यों? क्योंकि इससे पहले मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 में, जो कि पहली इंडियन वीमेन बॉक्सर बनी थी गोल्ड मेडल जीतने के लिए। इससे पहले विजेंद्र सिंह, अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन तो वो कौन है? विजेंद्र सिंह जिन्होंने 2008 में बॉक्सिंग में इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद अगर फर्स्ट इंडियन वीमेन पूछा जाए तो वो बनेंगी मैरी कॉम। फिर आ जाती हैं लोवलिना बोर्गोहेन, ये सेकंड इंडियन वीमेन है और थर्ड इंडियन बॉक्सर जिन्होंने ओलंपिक मेडल में मेडल जीता। तो लोवलिना बोर्गोहेन ने कौन सा मेडल जीता? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 64 से 69 केजी कैटेगरी में इन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, लोवलिना बोर्गोहेन को ही अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2020 में, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में डिस्कस कर रहा हूं ये याद रखना, जैसे वीविंग, क्लिंच, ब्रेक, बाउट, नॉकआउट, जैब, क्रॉस, हुक, ये क्या है? ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो आपका एक बॉक्सिंग उसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो प्रेसिडेंट है अजय सिंह, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ये AIBA से नाम चेंज करके इसका अब हमने पढ़ा था एक्रोनिम IBA कर दिया था। प्रेसिडेंट रहेंगे उमर कैम्बरले एंड हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा के दूसरे प्लेयर रवि कुमार दहिया जी की। रवि कुमार दहिया किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? ये रेसलर है। इनको कौन सा मेडल मिला? पिक्चर में देख के बताइए। सिल्वर मेडल मिला। ठीक है, सिल्वर मेडल से इन्होंने फ्री स्टाइल रेसलिंग में, जो कि 57 केजी कैटेगरी की फ्री स्टाइल रेसलिंग में इन्होंने मैच जीता। रशिया में हरा के इन्होंने रशियन प्लेयर को हरा के सिल्वर मेडल जीता था। ये चीज़ आपको इनके बारे में याद रखनी है। ठीक है, चलो ये इनसे रिलेटेड आप इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट, कुछ रेसलिंग रूल्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे ईच रेसलिंग मैच ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है 3 मिनट्स ईच, मतलब 2 पार्ट्स होते हैं 3 मिनट के, और इनके बीच में 30 सेकंड का गैप होता है। ठीक, दिस मैच, ये जो मैट होता है, जिस मैट पे ये कहते हैं ना मैट से बाहर भी नहीं जाना होता, तो वो मैट का क्या होता है? 9 मीटर का डायमीटर होता है। ऑलराइट, एंड एथलीट्स आर अवॉर्डेड बिटवीन 1 to 5 पॉइंट्स फॉर एवरी मूव बेस्ड ऑन देयर डिफिकल्टी लेवल। 1 से लेके 5 के बीच में इनको पॉइंट्स मिलते हैं। 3 कहते हैं कि बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल गए आपको। ऑलराइट, एंड जिसके ज़्यादा पॉइंट होंगे वो मैच जीत जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे एक और हरियाणा के प्लेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, बजरंग पूनिया जी। बजरंग पूनिया जी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बताना है किस स्टेट से? हरियाणा। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ आपको याद रखना है इनके बारे में 65 केजी कैटेगरी में ऑफ फ्री स्टाइल रेसलिंग में ये पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड कजाकिस्तान के प्लेयर को हरा के इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ठीक है, बजरंग पूनिया किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से, ब्रॉन्ज मेडल, और 65 केजी कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको, वो पहले
इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतने वाले व्यक्ति कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस? वो थे केडी जादव। इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, ठीक है। 1952 में के जो हेलसिंकी ओलंपिक गेम्स हुए थे उनमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता केडी जादव ने। किसमें? 57 केजी फ्री स्टाइल इवेंट में। कौन से स्पोर्ट के? रेसलिंग के स्पोर्ट के इन्होंने जीता, ठीक। फिर उसके बाद पूछ लेंगे कि वो पहली फीमेल रेसलर कौन है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था? वो है साक्षी मलिक। पहली इंडियन फीमेल रेसलर जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता वो है साक्षी मलिक। इन्होंने कौन सा जीता था? ब्रॉन्ज जीता था। 58 केजी कैटेगरी में जीता था और 2016 रियो ओलंपिक गेम्स के दौरान इन्होंने ये मेडल जीता। नेक्स्ट आ जाते हैं सुशील कुमार। वो पहले इंडियन जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक्स में मेडल जीते। ब्रॉन्ज जीता 2008 के बीजिंग ओलंपिक गेम्स में एंड सिल्वर जीता 2012 के लंदन ओलंपिक गेम्स के दौरान इन्होंने, ठीक है। पूछ लेंगे पहले इंडियन जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक्स में मेडल जीता, सुशील कुमार, ठीक है। चलो फिर योगेश्वर दत्त आपको याद रखना है, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक गेम्स में इन मेंस 60 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग। तो पहले इंडिविजुअल जिन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस जीता रेसलिंग में मेडल जीता केडी जादव 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक गेम्स में और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पहली इंडियन फीमेल रेसलर जिन्होंने मेडल जीता साक्षी मलिक, रियो ओलंपिक गेम्स 2016 के में जीता था, 58 केजी कैटेगरी में जीता था और ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, इसको तो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉकी की। हॉकी की से रिलेटेड आप मुझे बताओ 18 मेंबर की इंडियन हॉकी टीम थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 2020 ओलंपिक गेम्स में एंड इन्होंने किन को हराया था? जर्मनी को हरा के जीता। गोल्ड मेडल मिला बेल्जियम को और सिल्वर मेडल मिला ऑस्ट्रेलिया को। अगर मेंस हॉकी टीम की बात करें तो कैप्टन है मनप्रीत सिंह, गोलकीपर है PR श्रीजेश और हेड कोच रहेंगे ग्राहम रेड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच की बात करूं तो वो कौन है? राहुल द्रविड़। एडिशनल इंफॉर्मेशन बस याद रखना, ठीक। अब आ जाते हैं मेंस रैंकिंग। इंडियन हॉकी टीम की जो मेन की टीम है उसकी रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पे है। बेल्जियम फर्स्ट पे आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड, नीदरलैंड फोर्थ। और अगर वीमेंस की बात करें तो इंडिया की टीम 8th पोजीशन पे है, नीदरलैंड फर्स्ट, इंग्लैंड सेकंड और अर्जेंटीना आपकी 3rd। नेक्स्ट अगर हॉकी एंड इंडिया की बात करें, हॉकी याद रखना पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1908 के ओलंपिक गेम्स में एंड इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया ओलंपिक गेम्स में 1928 में। तो 1928 से हर ओलंपिक हॉकी के गेम में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसके साथ साथ हम सोचते हैं कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? ऑफिशियल नेटवर्क स्पोर्ट हॉकी है, लेकिन नहीं, हॉकी को रेफर किया जाता है इंडिया का नेशनल स्पोर्ट, बट इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया का कोई ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट नहीं है, तो हॉकी मार्क मत करना। नेक्स्ट इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नेम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो मेजर ध्यानचंद थे ये 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड विनिंग हॉकी प्लेयर थे। इनको ऑनर करने के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। इसके साथ साथ याद रखना नेशनल स्पोर्ट्स डे आपका 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया एट ओलंपिक्स। इंडिया ने कितने प्लेयर्स भेजे? 126 एथलीट्स भेजे, ठीक है। 18 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर 85 मेडल्स, ठीक है, जिसमें से 70 मैन थे और 56 वीमेन थी। ऑलराइट, फिर आपको याद रखना है इंडिया के जो फ्लैग बियरर्स थे वो कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी के दौरान तो मैरी कॉम जो कि बॉक्सर है इन्होंने और मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कैप्टन हैं इन दोनों ने फ्लैग बियरर बने थे। और क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान बजरंग पुनिया आपके जो कि एक रेसलर है वो फ्लैग बियरर थे। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करना। नेक्स्ट इसके साथ आपको याद रखना है जो पहली बार हुआ, अभी 2-3 चीज़ बताऊंगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहले इंडियन जज कौन बने ओलंपिक्स में? दीपक काबरा। ये पहले इंडियन जज बने ओलंपिक में, दीपक काबरा। फॉर विच इवेंट? फॉर मेंस के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक इवेंट के लिए दीपक काबरा, याद रखना। फिर फेंसिंग में पहली बार पार्टिसिपेट करने वाले कौन इंडियन बना? वो है CA भवानी देवी। ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, पहली इंडियन फेंसर बनी जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, पहली फेंसर,
कौन बनी? CA भवानी देवी। पहले जज दीपक काबरा। और फिर पहली स्विमर कौन थी? स्विमिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले फर्स्ट एवर इंडियन स्विमर्स कौन थे? सज्जन प्रकाश एंड श्रीहरि नटराज, ये दोनों। तो पहले स्विमर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक गेम्स में सज्जन प्रकाश, श्रीहरि नटराज, ये दो। एंड फेंसर कौन थी? CA भवानी देवी। एंड पहले जज कौन थे? दीपक काबरा। नेक्स्ट, अगर मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करूं, ये 1927 में फॉर्म हुआ था। दोराबजी टाटा इनके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे एंड करंट जो प्रेसिडेंट है वो है नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी। ही वॉज अ स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ये स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर थे जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, अभी तक इंडिया का जो हिस्ट्री रहा है ना टोटल ओलंपिक गेम्स का, उसमें से अभी तक इंडिया ने 35 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज है। इंडिया की 2020 में रैंक कितनी है? 48 मेडल टैली में। ये आप एक बार मेडल्स रिवाइज कर लीजिए फिर से, क्विक रिवीजन। नीरज चोपड़ा को गोल्ड, मीराबाई चानू को सिल्वर, रवि कुमार दहिया को भी सिल्वर, PV सिंधु को ब्रॉन्ज, लॉवेलिना बोर्गेन को ब्रॉन्ज, मेंस हॉकी टीम को ब्रॉन्ज और बजरंग पूनिया को भी ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं इन्होंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जो कि आपके ओलंपिक गेम्स के दौरान बने। सबसे पहले बात करेंगे स्विमिंग की। स्विमिंग के इवेंट था 200 मीटर बैक स्ट्रोक। 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में टाटजाना शोनमेकर, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एंड इन्होंने वीमेन स्विमिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ऑफ 2 मिनट्स 18.95 सेकेंड्स का। ठीक है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और फिर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये टाटजाना शूमेकर कहाँ की हैं? ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैन की 400 मीटर हर्डल की। कैस्टन वार्महोम, ये नॉर्वे से बिलोंग करती हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता बाय मेकिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंप्लीटिंग द 400 मीटर हर्डल्स इन 45.94 सेकेंड्स में इन्होंने गोल्ड कंप्लीट करके 400 मीटर का हर्डल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया। फिर हम बात करेंगे ट्रिपल जंप की। ट्रिपल जंप में यूलिमार रॉजर्स, ये वेनेजुला से बिलोंग करते हैं, इनको गोल्ड मेडल मिला आफ्टर इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया लॉन्ग ट्रिपल जंप का 15.67 मीटर का। ट्रिपल जंप क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आए, यहाँ से आपको जंप करना है, एक जंप, दूसरा जंप एंड तीसरे जंप जो आपका यहाँ पे आएंगे, इस पॉइंट को आपका मार्क किया जाता है। तो ये जो पॉइंट था 15.67 मीटर का था एंड ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। किन्होंने बनाया? यूलिमार रॉजर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यंगेस्ट मेडलिस्ट की। मोमिजी निशिया, ये जापान से बिलोंग करती हैं, 13 साल की हैं एंड ये यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बनी जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द वीमेन स्केट बोर्डिंग इवेंट। ठीक है, मोमिजी निशिया जापान की 13 ईयर्स ओल्ड। और ओल्डेस्ट मेडलिस्ट बने डोरोथी श्रिंडर, ये जर्मनी के हैं एंड ये 52 ईयर्स ओल्ड एज है। ऑलराइट, तो यंगेस्ट मोमिजी निशिया जापान की एंड ओल्डेस्ट बनी आपकी डोरोथी श्रिंडर जो कि जर्मनी के हैं एंड 52 ईयर्स ओल्ड ये हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है ओलंपिक रिकॉर्ड से रिलेटेड। यूएस से अभी तक सबसे ज्यादा ओलंपिक गेम्स कराने वाला कंट्री बन चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द लीडिंग कंट्री इन होस्टिंग मोस्ट ओलंपिक गेम्स। इन्होंने अभी तक कितने 8 ओलंपिक गेम्स होस्ट कराए हैं, 4 समर और 4 विंटर। लंदन सिटी, अगर मैं लंदन सिटी की बात कर रहा हूँ, इस सिटी ने लंदन सिटी ने के पास रिकॉर्ड है अभी तक के सबसे ज़्यादा समर ओलंपिक गेम्स होस्ट कराने का, जो कि कितने हैं? 3 ओलंपिक गेम्स, 1908 में, 1948 में और 2012 में। तीनों ये ओलंपिक गेम्स, तीनों समर ओलंपिक गेम्स होस्ट कराने हैं अभी तक लंदन ने। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ओलंपिक गेम्स किस सिटी ने होस्ट कराए? समर ओलंपिक गेम्स लंदन ने। और यूएस से बना लीडिंग कंट्री जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा ओलंपिक गेम्स होस्ट कराए हैं वो है 8। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि हम सिमिलर टाइप का कंटेंट आपके लिए लाते रहें तो आपको नीचे कमेंट करके हमें बताना होगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर पसंद आया आपको ये कंटेंट एंड आप चाहते हैं कि हम इस पे और वर्क करें और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर दें। बट कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कंटेंट कैसा लगा, हमारा ये इनिशिएटिव। ऐसी इन्फोग्राफिक्स अगर आपको चाहिए तो ये हमारी एप्लीकेशन पे जाके, कैरियर्स क्लाउड की एप्लीकेशन पे जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel, then do subscribe because it motivates us to bring a better content for you guys.
Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862, and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price, and that will help you to boost your preparation.